A very good morning to all of you. Let's revise whatever we discussed yesterday. Bolo, what is the meaning of operating leverage? Taking advantage of fixed cost funds. Acha, which type of fixed cost funds? Fixed operating or fixed production cost. Okay. What is the two-level formula of operating leverage? Hey, ulta. Percentage change in EBIT upon percentage change in sales. And what is the single level formula? Contribution upon EBIT. ठीक है? Can your operating leverage be less than 1? Yes. No. Operating leverage is always more than 1, equal to 1, negative. ठीक है? It cannot be between 0 to 1. ठीक है? उसके बाद we discussed break even point. What is the meaning of break even? Break even point is a situation where there is no profit, no loss. ठीक है? How to calculate break even? Formula was fixed cost upon contribution per unit, you get break even quantity. If you want to calculate break even sales, fixed cost divided by PV ratio or contribution ratio. ठीक है? इतना अपन ने किया था. Today we go ahead with the next concept, margin of safety. Check करना what is the meaning of this margin of safety. Let me give you a income statement. Preferably write this. Sales less variable cost. Let us say variable cost are 70 बहुत हो गया 45% of sales. Variable cost are 45% of sales. Contribution less fixed cost. Therefore I get EBIT. I don't want आगे का information. EBIT तक I am okay. Sales 10 lakhs. Variable cost is 45% of sales. 10 lakhs का 45% it is 4,50,000. Contribution therefore is 5,50,000. Let us say fixed cost is 2 lakh. And therefore EBIT comes out as 3,50,000. ठीक है? At the EBIT level of 3,50,000, the company, so at the sales level of 10 lakh rupees, the company is earning a positive earning before interest and taxes. ठीक है? If I want to calculate at what level of sales the company will be earning zero profit, मतलब क्या? Break even. ठीक है? So अगर मुझे यहाँ पे break even point निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? डायरेक्टली सेल्स का ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन पॉइंट से ब्रेक इवन सेल्स. बोलो व्हाट इज द फॉर्मूला? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो और कंट्रीब्यूशन रेशियो एज द केस में बी. ठीक है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पीवी रेशियो? पीवी या कंट्रीब्यूशन रेशियो इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स. कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स into 100. This is the formula of PV ratio. So tell me if contribution in the given case is how much? 5,50,000. Sales is 10 lakh into 100. Therefore your PV ratio is 55%. You could have easily get this in a logical manner. If variable cost is 45% of sales, contribution has to be what? 55% of sales. काय करू? खाली क्यों वरती क्यों? अब अप्लाइंग दैट फॉर्मूला ऑफ ब्रेक इवन सेल्स, फिक्स्ड कॉस्ट में 2 लाख क्या? 2 लाख ही है ना? Fixed costs are 2 lakh divided by 55%. This is break even sales. 3,63,000. पॉइंट के बाद क्या है? तो लेट इट बी 363,636. This is my break even sales. At sales of 3,63,636, my EBIT will be
0। एक बार कंफर्म करके देखो करेक्ट है क्या? कैसे कंफर्म करना है कल सिखाया है। सेल को 3 लाख मानो, 363 636, देन कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट एज 45% ऑफ सेल्स। तो ये 2 lakhs are 363 636, इसका 45% कितना आता है? roughly around 1636 163 636. 636. So therefore your contribution is 2 lakh. If contribution is 2 lakh, fixed costs are 2 lakh. Therefore your EBIT is what? 0. मतलब ये 363 636 का ब्रेक इवन करेक्ट है। ठीक है, फॉर्मूला है तो ऑब्वियसली करेक्ट रहना चाहिए। अब ब्रेक इवन आ गया। नाउ लुक एट दिस थिंग, इफ आई मेक दिस अ टाइमलाइन, यहां पे मेरे प्रेजेंट सेल्स है, प्रेजेंट सेल्स ऑफ द कंपनी इज 10 लाख। ठीक है, यहां पे मेरा, या फॉर दैट मैटर ये द सेकेंड एंड ऑफ माई पॉइंट इज ब्रेक इवन सेल्स, दैट इज ऑफ 363 636। ये जो दोनों के बीच में का डिफरेंस है, ये जो दोनों के बीच में डिफरेंस है, हाउ मच इज दिस डिफरेंस? 10 लाख माइनस 363 636, 636364 636364. This is the difference of break even sales and what? Present sales. अब ये जो है 6,36,000 जो भी है ये, इसको बोला जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दिस 6,36,364 is called as margin of safety. मतलब क्या कि हाउ मच सेफ्टी और हाउ मच गैप द कंपनी कैन अफोर्ड इन सेल्स so that its current sales will go and fall to what? Break even. तो कंपनी क्या चाहेगी मालूम है क्या? कंपनी, अगर कंपनी का कुछ वर्स हो गया तो कंपनी विल एटलीस्ट रिक्वायर टू रीच व्हाट? ब्रेक इवन सेल्स। इफ द कंपनी इज ऑपरेटिंग एट 10 लाख इट इज वेरी गुड, बट देयर कैन बी सम ऑपरेटिंग रिस्क्स, जिस वजह से क्या हो सकता है? ये सेल कम हो सकता है। तो सेल कम होके कितना मैक्सिमम कम होना चाहिए? इट शुड रीच 363 636। इससे कम अगर गया तो कंपनी स्टार्ट्स टू अर्न व्हाट? इनकर व्हाट? लॉस। तो इसीलिए मैक्सिमम सेल्स में कितना गिरावट आ सकता है? 6,36,364। इतना मैक्सिमम फॉल कंपनी अफोर्ड कर सकती है इन द वैल्यू ऑफ सेल्स। सो दैट मैक्सिमम फॉल इन द वैल्यू ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज व्हाट? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अ वेरी सिंपल फॉर्मूला ऑफ एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज एक्चुअल सेल्स, दैट इज प्रेजेंट सेल्स, माइनस ब्रेक इवन सेल्स। एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी. Actual sales minus break even sales is your margin of safety. Differential sales between actual sales and break even sales. Margin of safety sales is actual sales minus break even sales. एंड अगर ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी को परसेंटेज फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स इनटू 100. मतलब बेसिकली व्हाट डज दिस परसेंटेज इंडिकेट? हाउ मच परसेंट ऑफ टोटल सेल्स इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स. हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स. अगर एक चीज रियलाइज हो रही है, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स जो न्यूमरेटर में है, इट इज नथिंग बट व्हाट? मार्जिन ऑफ सेफ्टी. सो एमओएस डिवाइड बाय एक्चुअल सेल्स इनटू 100 इज एमओएस परसेंटेज. दिस फॉर्मूला इंडिकेट्स कितने परसेंट ऑफ टोटल सेल्स इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी. ठीक है, coming back to this example, बोलो how much is MOS percentage? 63.6. MOS percentage is actual sales minus break even sales divided by actual sales into 100. एक्चुअल सेल्स है तुम्हारे 10 लाख के,
break even sales is 636 63 ब्रेक इवन सेल्स कितने 363 है ना 363,636 डिवाइड बाय योर एक्चुअल सेल्स आर 10 lakhs into 100, so therefore your margin of safety percentage is 63.64%. ये तुम्हारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है. अच्छा, कैन आई राइट दिस 63.64% एज 0.6364? क्या ये 63.64% को मैं 0.6364 लिख सकता हूँ? कैन आई राइट दिस परसेंटेज इन एक्सप्रेस्ड इन व्हाट डेसिमल फॉर्म कैन बी रिटन एज 0.6364. अभी मैंने क्यों लिखा है इसे? What is the formula of operating leverage? Single level obviously because तुमको multiple level का डेटा ही नहीं दिया है. Contribution upon EBIT. तुमने देखो क्वेश्चन में contribution कितना निकाला है? 5,50,000. And how much is EBIT? 3 lakh. So what is operating leverage? 1.57. 1.57 आगे 1.4. 1.5714. This is your operating leverage. On a calculators, kindly do 1 divided by 1.5714. Take reciprocal of 1.5714. Is everyone getting 0.6364? Yes. So therefore I get a relation between margin of safety and operating leverage as MOS is reciprocal of operating leverage. Margin of safety is reciprocal of operating leverage. So if the question gives you operating leverage, asks you to calculate MOS, can you do? Simply take up the reciprocal. If the question gives you margin of safety and asks you to calculate operating leverage, simply take the reciprocal. अच्छा, ये तो एक फॉर्मूला हो गया MOS का. दूसरा फॉर्मूला चेक करो. MOS is equals to EBIT upon contribution. MOS is equals to EBIT upon contribution. See if you have understood this. Same ही है. What is operating leverage? Operating leverage is contribution upon EBIT. अगर इसका रेसिप्रोकल मतलब अगर इसको उल्टा करूँ तो डिनोमिनेटर becomes numerator, numerator becomes denominator. So therefore margin of safety can also be written as EBIT upon contribution. Margin of safety is EBIT upon contribution. ये formulas important क्यों है? For reverse calculation questions, these formulas are important. Therefore, operating leverage is reciprocal of margin of safety. MOS is equals to EBIT upon contribution. ये अब एग्जाम्पल कौन सा एग्जाम्पल है? ये जो ऊपर का एग्जाम्पल था, यही एग्जाम्पल से मैंने नीचे मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिराइव किया है. यू कैन इग्नोर दिस, तुम्हारे नोटबुक में भी वही लिखा है, तो इधर बाजू में तुम लिख सकते हो रेफर नोटबुक फॉर द न्यूमेरिकल एग्जाम्पल. रेफर नोटबुक एंड आई होप पेज नंबरिंग अगर कर रहे हो तो रेफर नोटबुक पेज नंबर लिखो. वहाँ पे पेज नंबरिंग की आदत डालो प्लीज. इतना ज़्यादा कंटेंट है, भूल जाओगे कौन सा कंटेंट किधर लिखा है. ये रहेगा पेज नंबर. वेरी गुड. चलो, द लास्ट डिस्कशन इन द ऑपरेटिंग लेवरेज पॉइंट, रिलेशन बिटवीन ऑपरेटिंग लेवरेज, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड ब्रेक इवन पॉइंट. जो ऑपरेटिंग लेवरेज पढ़ा, ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पढ़ा, इन तीनों का क्या रिलेशन है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. नाउ देखो, थ्री सिचुएशन लिया है मैंने. सेलिंग प्राइस पर यूनिट आई हैव केप्ट कांस्टेंट इन ईच ऑफ द केस 200, 200 एंड 200. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दैट आल्सो हैव केप्ट कांस्टेंट एट 160. कंट्रीब्यूशन जाहिर होते कांस्टेंट रहेगा. यूनिट्स सोल्ड दैट आल्सो हैव केप्ट कांस्टेंट. सर बदला क्या है? रुको रे. Total contribution 4 lakh, 4 lakh and 4 lakh. What I have changed is I have altered fixed cost.
Fixed cost in the first case is 1,50,000. Fixed cost in the second case is 1 lakh, and fixed cost in the last case is 80,000. Contribution minus fixed cost, you get what? EBIT. कितना है? 2,50,000, 3 lakh and 3,20,000. Please understand. यहां तक तुमको समझा क्या? चेक करो. Please observe this table once and see if you have understood it till EBIT. EBIT के कैलकुलेशन तक समझा है क्या? प्लीज चेक करो. एक बार खुद कैलकुलेटर पे वर्क करो, देखो सही किया है क्या मैंने. डन? सही है. चलो बोलो. फॉर्मूला ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज. Contribution upon EBIT. Calculate for each of the three cases operating leverage. Exact 1.6 है. आगे नेक्स्ट 1. ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स निकालने के लिए बोला है. यूनिट्स का फॉर्मूला क्या है? इट इज फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय व्हाट? पीवी रेशियो. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. डू यू हैव कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? यस. 40 है ऊपर. फिक्स्ड कॉस्ट है हमारे पास 1.5 लाख. डिवाइड करो 40 से. 3750. केस बी. $25 and next $2,000. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स. सर एमओएस का फॉर्मूला क्या है? सिंपल, वेरी सिंपल, बेसिक फॉर्मूला ऑफ एमओएस. एक्चुअल सेल्स, वो छोड़ दे. एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स इज सिंपल फॉर्मूला ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स. मेरे को सेल्स का फिगर नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए? एमओएस यूनिट्स. तो कितने क्वांटिटी में बेचने चाहिए, कितना क्वांटिटी का मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है. द फॉर्मूला इज रिमेनिंग द सेम. एक्चुअल सेल यूनिट कितना है? 10,000. तुम्हारा ब्रेक इवन कितना है? 3750. सो यहां पे मैं लिखूंगा एक्चुअल यूनिट्स सोल्ड, एक्चुअल यूनिट्स सोल्ड माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स. दिस इज 6250, 7,500, 8,000. देयर इज अ अल्टरनेट वे टू कैलकुलेट दिस एमओएस. तुम पहले एमओएस सेल्स निकालो, फिर डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस, यू गेट एमओएस यूनिट्स. बट इतना क्यों कर रहे हो व्हेन यू हैव अ सिंपल फॉर्मूला ऑफ एमओएस? इतना डेटा तुम्हारे सामने है. नाउ बिफोर आई प्रोसीड अहेड विद द फर्दर डिस्कशन, टेल मी, तुम्हारे हिसाब से ऑपरेटिंग लेवरेज किसका मेजर है? ऑपरेटिंग लेवरेज इज मेजर ऑफ measure. What does operating leverage measures? Fixed operating. एडवांटेज ठीक है, एफिशिएंट नहीं. कुछ तो मेजर करता है वो. कल सबसे पहले डिस्कशन क्या किया था मैंने? EBIT नहीं रे, लिखा है इधर, भूलते साले, घर पे जाके पढ़ते नहीं तुम लोग. ऑपरेटिंग लेवरेज इज द मेजर ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क. सो ऑपरेटिंग लेवरेज मेजर्स ऑपरेटिंग रिस्क. हायर द ऑपरेटिंग लेवरेज, हायर द ऑपरेटिंग रिस्क. सेकेंड चीज मुझे बता, ब्रेक इवन यूनिट्स. क्या लगता है, शुड अ कंपनी रीच ब्रेक इवन अर्ली और इट कैन रीच आराम से जब मन चाहे तब? ब्रेक इवन मतलब क्या? अ सिचुएशन वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस. सो इफ अ कंपनी हैज स्टार्टेड इट्स ऑपरेशंस नाउ, what do you think? The company desires to reach break even as soon as possible or as आराम से as possible? As soon as possible the company wants to reach break even. See, एक बार break even reach हो गए ना, तो फिर break even के आगे पूरा तुम्हारा ही खेल खेलना है. जो करना है करो. Reach break even first. First ensure your total costs are equal to total profits. Can you share this PDF? Monday you will receive the books only directly. But yeah, PDF में शेयर करके रखता हूँ ग्रुप पे. रुक जा.
नहीं यहाँ पे नहीं है, ठीक है, मैं भेजता हूँ. बाय द एंड ऑफ द डे आई विल सेंड दिस पीडीएफ. नेवरदलेस ऑन मंडे यू विल रिसीव द कॉपीज ओनली. क्या क्या पढ़ा रहा था मैं? ब्रेक इवन यूनिट्स. यू शुड रीच ब्रेक इवन एज सुन एज पॉसिबल. तो ब्रेक इवन यूनिट्स जितने कम है उतना ज्यादा, उतना अच्छा, कि जितने ज्यादा है उतने अच्छे. क्या बोला मैंने? ब्रेक इवन यूनिट्स लोअर द बेटर और हायर द बेटर. Lower the better. Break even units is always lower the better because the company desires to reach the break even as soon as possible. तो जितने कम यूनिट में वो ब्रेक इवन रीच कर रहा है ना, उतना उसके लिए ज्यादा है. A company always prefers to reach break even as soon as possible, so that once it reaches break even, there is scope for expansion and earning positive profits. Next, margin of safety. मार्जिन ज्यादा रहना चाहिए ऑब्वियसली, बिकॉज यू ऑलवेज वांट योर मार्जिन टू बी हाई. क्यों? अगर गलती से कुछ हो गया, सेल गिर गया तुम्हारा, कंपनी को ऑपरेटिंग रिस्क हो गया, तो मार्जिन अगर ज्यादा है मतलब क्या? योर सेफ्टी इज मोर. सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी शुड बी हायर. मार्जिन ऑफ सेफ्टी हायर द बेटर, बिकॉज the company will have higher safety margin if the sales decline. Do one thing, look at these 3 points. देखो क्या क्या लिखा है ऊपर, टेबल है कंपेयर करने के लिए. चेक करो क्या तीनों पॉइंट्स सेंस बनाते हैं क्या? डू द 3 points मेक सेंस टू यू? अरे अनुष्का मॅमला विचार बुक्स कधी येत आहे. जा रहा है क्या? आई विल टू अंडरस्टैंड दिस. हायर द फिक्स्ड कॉस्ट, हायर द ऑपरेटिंग लेवरेज. चेक करो 1.5 लाख 1,80,000 फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे ज्यादा है, एंड सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज के सेम है. हायर द फिक्स्ड कॉस्ट लॉन्गर इज द ब्रेक इवन पॉइंट. चेक करो दिस इज द ब्रेक इवन क्वांटिटी, सबसे ज्यादा कहाँ पे? केस ए. हायर द फिक्स्ड कॉस्ट हायर द ब्रेक इवन. लोअर द फिक्स्ड कॉस्ट 80,000, हायर इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी. ठीक है, सो दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट. ठीक है, रखने वहां पे. दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट एज फार एज योर ऑपरेटिंग लेवरेज इज
कंसर्न। ऑपरेटिंग लेवरेज के कौन से कॉन्सेप्ट्स है? कॉन्सेप्ट 3 टू कॉन्सेप्ट 6 इज ऑन ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज में तुमको याद क्या रखना है? सिंपल 2 लेवल फॉर्मूला, एंड 2 लेवल फॉर्मूला से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है द सिंगल लेवल फॉर्मूला। फिर ये जो की पॉइंट्स है ये कैटेगोरिकली इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यू, आया तो अगर पूछेंगे, या फिर अगर तुम्हारा आंसर कोई गलत गया है तो तुमको समझेगा कि आंसर क्यों गलत गया है। नेक्स्ट, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली रिवर्स कैलकुलेशन क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा काम आएंगे। ये रिलेशन अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। एंड एक बात प्लीज ध्यान में रखना, एफएम के जो क्वेश्चंस रहेंगे ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे कि नीचे तुमको पूछेंगे रिकमेंड द और एडवाइज व्हाट द कंपनी शुड डू, फिर तुमको पूछेगा रिकमेंड योर सजेशंस, तुम्हारा क्या अंडरस्टैंडिंग है वो बताओ। तो अगर फॉर एग्जांपल दो कंपनीज कंपेयर करना है और तुमको एक कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज आया 1.6 का, एक का आया 1.33 का, तो योर आंसर डज नॉट एंड बाय merely गिविंग द कैलकुलेशंस, यू हैव टू राइट डाउन नीचे कि ऑपरेटिंग लेवरेज इसका ज्यादा क्यों है, इसका कम क्यों है। तो तुमको इसके लिए ये 3 सिचुएशंस या 3 रिलेशंस अंडरस्टैंड करना जरूरी है, ठीक है। तीनों का ही रिलेशन फिक्स्ड कॉस्ट से है, हायर द फिक्स्ड कॉस्ट हायर द ऑपरेटिंग लेवरेज, हायर द फिक्स्ड कॉस्ट हायर द ब्रेक इवन, लोअर द फिक्स्ड कॉस्ट हायर द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। दिस इज योर ऑपरेटिंग लेवरेज डिस्कशन जितना है ये। अब ऑपरेटिंग लेवरेज के ऊपर इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस पूछना एग्जाम में डाउट ही है, नेवरदलेस यू कैन हैव दिस क्वेश्चन नंबर 12 फॉर योर रेफरेंस। नहीं वहां पे नहीं है, तुम यहां पे देखो, कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज, हाँ तुम्हारे नोट्स में है, सीएस वालों तुम लोग यहां पे ऑब्जर्व करना। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर ईच ऑफ द 4 फर्म्स ए बी सी एंड डी। 4 फर्म्स के तुमको ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग प्राइस एंड कॉस्ट डेटा व्हाट कंक्लूजन्स कैन यू ड्रॉ विथ रिस्पेक्ट टू द लेवल्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। तुमको ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करना है, ओके डन। यहां पे व्हाट कंक्लूजन्स यू ड्रॉ विथ रिस्पेक्ट टू द लेवल्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। तो मार्क्स तुमको सिर्फ कैलकुलेशन के नहीं है, ये लिखने के भी मार्क्स है तुमको। अज्यूम द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इज 5000, तो हर एक फर्म कितना यूनिट बेच रही है? 5000 बेच रही है। यू हैव गॉट सेल प्राइस पर यूनिट, you have got variable cost per unit. Can you get contribution per unit? The answer is yes. Get contribution per unit. Then you have number of sales. So contribution per unit into total number of units sold. Total contribution. उसमें से deduct fixed cost. You get EBIT. एक बार EBIT आ गया, calculating operating leverage is simple. Try कर सकते हो, करो. Try question number 12. Online students, please try question number 12. सुनो, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट पहले तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, तब जाके तुम ये इनकम स्टेटमेंट में भर सकते हो। इनकम स्टेटमेंट में आते हैं सेल, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, ईबीआई, फिक्स्ड कॉस्ट एंड ईबीआईटी। मुझे ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है, मतलब आई वांट ओनली कैलकुलेशंस अप टिल ईबीआईटी। आगे निकालने के लिए कुछ तुमको कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। एक करो, क्या करूं मैं? आत्मनिर्भर,
ऑपरेटिंग लेवरेज में हाँ वही निकालना है. Reason भी लिखना है. कंक्लूजन में लिखाता हूँ. आते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज कैन नेवर बी बिटवीन 0 to 1. फॉर्मूला उल्टा लिखा है तूने. इट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी. यू हैव टेकन ईबीआईटी अपॉन कंट्रीब्यूशन. इसलिए मैंने वो की पॉइंट लिखे थे कि इट कैन नेवर बी बिटवीन 0 to 1. मोमेंट यू गेट 0 to 1 इट मीन्स यू हैव डन समथिंग रॉन्ग. इट्स ओके. सेवन टू थ्री वन यह है. Minus. हाँ -7 2 -3 and 1. ओके. चलो कैन आई डिस्कस. सबसे पहले प्लीज टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन लाइक दिस. सेल्स 20 into 5000, 32 into 5000, 50 into 5000 and 70 into 5000. सेम गोज विथ वेरिएबल कॉस्ट. कितने लोगों ने किया है? हाथ ऊपर करें कृपया करके. गलत नहीं है. इट इज़ नॉट रॉन्ग बट यू नीड टू नो इन एग्जामिनेशन हाउ टू सेव टाइम. व्हाई डू यू राइट एवरीथिंग? तुमको सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया है, गेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एंड देन मल्टीप्लाई इट बाय 5000. इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द प्रोसेस यू आर रिपीटिंग द प्रोसेस 2 times. एक तो सेल्स इनटू ये कर रहे हो एंड वेरिएबल कॉस्ट इनटू ये कर रहे हो. इससे अच्छा क्या करो मालूम है क्या? राइट डाउन सेलिंग प्राइस. यहाँ पे अभी लिखा है तो चेंज नहीं करने का. हाँ, answer will be correct only. I'm just telling you how to save time in the examination. Selling price minus variable cost 20 32 50 70. Variable cost is 6 16 20 and 50. अगर ये करूँ माइनस तो आई गेट कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 14 16
30 एंड 20 एंड देन यहीं पे यू मल्टीप्लाई विद बाय यूनिट्स सोल्ड. वाई? तुम वेरिएबल सेल में भी 5000 मल्टीप्लाई कर रहे, वेरिएबल कॉस्ट में 5 मल्टीप्लाई कर रहे, तो इंस्टेड टेक डिफरेंस एंड देन मल्टीप्लाई ओनली टू व्हाट? कंट्रीब्यूशन. योर टाइम विल बी सेव्ड. तो इनटू 5000 5000 5000 and 5000. Therefore, you get total contribution 70,000. 1,50,000. इसमें से तुम माइनस करोगे फिक्स्ड कॉस्ट 80,000, 40,000, 2 लाख, nil. Therefore, you get EBIT as minus 10,000, 40,000, minus 50,000 and 1 lakh. तो टेल मी ऑपरेटिंग लेवरेज कितना आया? ए का ऑपरेटिंग लेवरेज इज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT 70,000 डिवाइडेड बाय माइनस 10,000. दिस इज माइनस 7. बी का कितना आया? सी का एंड डी का 1. The moment you get answer of D as 1, immediately लिख देना the company does not have operating leverage. Why? Operating leverage exists only and only if there are fixed costs. If the fixed costs are nil, operating leverage will be 0. Everyone has got this correct? ठीक है? तो write down conclusions. पहला conclusion. First conclusion write down. Firm D does not have fixed cost. Firm D does not have fixed cost, and therefore no operating leverage exists. No operating leverage exists for firm D. For firm D. ठीक है? अब दो फर्म्स ए और सी का ऑपरेटिंग लेवरेज नेगेटिव है. क्या हो सकता है ऑपरेटिंग लेवरेज नेगेटिव? Yes. हो सकता है, नहीं क्या है? अब बिटवीन फर्म ए एंड फर्म सी किसका ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा है? सर वो ये 7 ज्यादा बड़ा है ना सर. -7 और -3 में बड़ा -3 है. तो राइट डाउन between firm A and C, operating leverage of firm C is greater. Operating leverage of firm C is greater since -3 is greater than -7. Since -3 is greater than -7. How many color pens do you bring? एक भी कलर पेन पेंसिल लेके आए सब लोग? स्क्रैच द लाइन विच यू रोट जस्ट नाउ. इमीडिएटली स्क्रैच करो जो लाइन लिखा है अभी. कट करना है. कौन बोला चुक? ओ ठीक है. सुनो, वो जो माइनस का लॉजिक लिखा है ना, वो बच्चों का लॉजिक है. -3 इज ग्रेटर देन -7. मानो तो ऐसे बोलेगे, अरे कल मैंने क्या बोला था कि अगर ऑपरेटिंग लेवरेज नेगेटिव आया मतलब क्या? इट इज unfavorable for the company. It is a double-edged sword. If the operating leverage is negative, what does it mean? कि अगर सेल थोड़े % से गिरा तो EBIT बहुत ज्यादा % से गिरेगा. मेरे को एक बात बता, अगर -7 तुम्हारा ऑपरेटिंग लेवरेज आया, if operating leverage is -7, please tell me, if operating leverage is -7 and you change the sales by, let us say 20%, your EBIT will change by 140%. तो इसलिए कृपया करके वैसा कंक्लूजन ना लिखे. तो राइट डाउन द कंक्लूजन. ऑपरेटिंग लेवरेज ऑफ ए इज ग्रेटर देन ऑपरेटिंग लेवरेज ऑफ सी. OL ऑफ ए इज ग्रेटर देन OL ऑफ सी.
इनकम स्टेटमेंट के क्वेश्चन तो ठीक है, जो बाकी बच्चे हैं तुमको अगर कर सकते हो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड्स इट इज लेवरेजेस। क्वेश्चन 13 भी ऑपरेटिंग लेवरेज का है, बट आई वांट टू डिस्कस फाइनेंशियल लेवरेज फर्स्ट, देन विल गो टू द फर्दर क्वेश्चंस। चलो बिफोर डिस्कस फाइनेंशियल लेवरेज, फाइनेंशियल रिस्क करके एक चीज़ रहेगी, उसके ऊपर आ जाओ। ऑन पेज नंबर 12 यू विल फाइंड फाइनेंशियल रिस्क। कंसेप्ट नंबर 2 में ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एंटिटी, उसके अंडर फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क बोलो, फाइनेंशियल रिस्क का मतलब क्या? फाइनेंशियल रिस्क, ऑपरेटिंग रिस्क का मतलब मालूम हो गया, फाइनेंशियल रिस्क का मतलब क्या? बोल ना, बोल बोल। associated with finance risk. रिस्क एसोसिएटेड विथ रेजिंग ऑफ फाइनेंस। देखो तुमने बैंक से लोन लिया, बैंक का इंटरेस्ट है 12% का। अब वो इंटरेस्ट पे करने के लिए यू शुड इंश्योर कि यू हैव सफिशिएंट प्रॉफिट्स। व्हाट इफ यू डोंट हैव सफिशिएंट प्रॉफिट्स? द इंटरेस्ट विच यू हैव टू पे बिकम्स योर रिस्क। तो इसीलिए फाइनेंशियल लेवरेज एग्जिस्ट्स व्हेन यू हैव टेकन अ फाइनेंसिंग ऑफ लोन or any other type of debt. So when you have a debt financing in your capital structure, at that point financial risk exists. Financial risk का मतलब क्या है? अब आप अगर सिचुएशन देखोगे, a retail chain borrows heavily to finance a rapid expansion. उसको 100 नए स्टोर्स ओपन करने थे, उसके लिए उसने डेट बोरोइंग लिया, बट हुआ क्या? कंज्यूमर स्पेंडिंग स्लो डाउन। जो कंज्यूमर स्पेंडिंग, जो कंज्यूमर्स उनको एक्सपेक्टेड थे वो कंज्यूमर्स आए ही नहीं। अगर कंज्यूमर आया नहीं, सेल हुआ नहीं, सेल हुआ नहीं, प्रॉफिट कमा नहीं पाए, बट इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा लोन के ऊपर का। तो द न्यू स्टोर्स जनरेट लेस रेवेन्यू देन एक्सपेक्टेड एंड देयरफॉर द फिक्स्ड मंथली इंटरेस्ट पेमेंट विच रिमेन द सेम बिकम्स रिस्क ऑफ द एंटिटी। तो फाइनेंशियल रिस्क कब होगा? फाइनेंशियल रिस्क अराइजेस व्हेन द कंपनी हैज टेकन अ debt financing. तो प्लीज ऊपर लिखो, फाइनेंशियल रिस्क arises when the company has taken debt financing. Financial risk arises when the company has taken debt financing. Financial risk arises because of the use of financial leverage. ब्रैकेट में लोगों क्या है? सोर्सेस ऑफ फंड्स बेयरिंग फिक्स्ड फाइनेंशियल पेमेंट्स लाइक डेट। व्हेन योर एंटिटी हैज फिक्स्ड फाइनेंशियल पेमेंट्स और फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, मतलब इंटरेस्ट पेमेंट्स, तब जाके ये फाइनेंशियल रिस्क एग्जिस्ट करता है। अब हमने ऊपर देखा कि बिजनेस रिस्क जो है, इट इज अ अनअवॉइडेबल रिस्क. Why? Changes in business cycle is not in your control. Coming up of a new competitor is not in your control. Technological changes is not in your control. But definitely whether to take loan or not is in your control. लोन लेना है कि नहीं लेना है ये तुम्हारे कंट्रोल में है. अगर लोन लेते हो तो फाइनेंशियल रिस्क आएगा, अगर लोन नहीं लेते तो फाइनेंशियल रिस्क नहीं आएगा. बट इसीलिए मैंने बोला फाइनेंशियल रिस्क इज अ avoidable risk since the firm can very simply avoid it by not using financial leverage or by not using debt in the capital structure. तुम बैंक से लोन मत लो, ऑटोमेटिकली तुमको फाइनेंशियल रिस्क आएगा ही नहीं. इट इज मेजर्ड बाय फाइनेंशियल लेवरेज. क्या है फाइनेंशियल लेवरेज? पढ़ेंगे. अच्छा, इज EBIT डिपेंडेंट ऑन योर सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग? नहीं, EBIT is never dependent on sources of finance. So if EBIT is not dependent on sources of finance, हमने पढ़ा था operating leverage does not differ with the use of financing. Business risk does not differ with the use of financing. But financial risk 100% differ करता है on the sources of financing. If you take debt financing, risk है. If you take equity financing, financial risk नहीं है. So its degree differs with the use of different forms of financing. Its degree differs with the use of different forms of financing. This is the concept of financial risk. कभी कभी एक घटिया
थियोरी में क्वेश्चन आता है डिफरेंशियल बिटवीन ऑपरेटिंग रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क, उसके लिए ये पढ़ के दे सकते हो। जहां तक मैं बोलता हूँ थियोरी अवॉइड करना, थियोरी में फुल मार्क्स लेके आना बहुत मुश्किल है, सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है इसलिए। ठीक है, कम अप टू कॉन्सेप्ट नंबर 7, फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज, जैसे ऑपरेटिंग लेवरेज में हमने पढ़ा था कि इट इज बिकॉज ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्शन या ऑपरेटिंग कॉस्ट, फाइनेंशियल लेवरेज इज बिकॉज ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। तो देखना यहां पे क्या है, फाइनेंशियल लेवरेज इज द मेजर ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, थैंक यू वेरी मच। द परसेंटेज चेंज, देखो ये क्या है, द परसेंटेज चेंज इन द अर्निंग्स पर शेयर occurring due to a percentage change in EBIT is known as degree of financial leverage। क्या है ये, percentage change in EPS earning per share occurring due to a percentage change in EBIT is called as degree of financial leverage। सर मतलब क्या है इसका, देखो एक और चीज यहां पे लिखा है, फाइनेंशियल लेवरेज इज डिफाइंड एज taking advantage of debt to increase EPS। सर एक सेकंड रुको, FL is defined as taking advantage of debt to increase EPS। सर EPS is dependent on profit, EPS निकालने के लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो आता ही है पहले, उसमें से प्रेफरेंस रेट माइनस करते हैं। अब मुझे बता, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ अ कंपनी कम कब रहेगा, जब इंटरेस्ट रहेगा तब, या जब इंटरेस्ट नहीं रहेगा तब। प्रॉफिट कैसे आता है मालूम है सबको, sales minus cost minus interest is profit। So situation 1 and situation 2, हटना, यहां पे you have situation 1, यहां पे situation 2। यहां पे मैं बोलता हूं earnings before interest and taxes 1 lakh, earning before interest and taxes 1 lakh। केस A1 जो है उसमें इंटरेस्ट है, तो EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करूंगा, या आता है 80,000, यहां पे इंटरेस्ट नहीं है तो माइनस नहीं करूंगा, 80 बहुत हो गया, 8,000, 92,000, एंड यहां पे कितना, 1 लाख। ये क्या है तुम्हारा अर्निंग बिफोर टैक्स, अज्यूम करो टैक्स है ही नहीं, अगर टैक्स है ही नहीं तो ये अर्निंग बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोनों सेम रहेंगे। सर इधर आपने बोला FL is taking advantage of debt to increase EPS। FL is defined as taking advantage of debt to increase EPS। सर अगर डेट लेंगे तो यहां प्रॉफिट तो कम हो रहा है, प्रॉफिट कम होने के बावजूद आप EPS कैसे बढ़ा सकते हो, सुन लेना, EPS कैसे बढ़ाया जाता है नीचे, डोंट वरी। एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल पोजीशन, हाउ इज EPS इंक्रीज्ड, यहां पे ऑब्जर्व करना सब लोग। एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल पोजीशन, अब जो कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल डेटा है तुमको दिया गया है, एग्जिस्टिंग EBIT या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आई एम अज्यूमिंग कि एग्जिस्टिंग कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, अगर एग्जिस्टिंग कंपनी के पास इंटरेस्ट नहीं है तो EBIT ही क्या रहेगा, PBT रहेगा, और अगर टैक्स नहीं है तो PBT ही क्या रहेगा, पैट रहेगा। एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल पोजीशन ब्रैकेट में लिखो, अज्यूमिंग zero interest, assuming zero interest and zero taxes, assuming zero interest and zero taxes, this is the existing financial position of the company। तो अगर इंटरेस्ट भी कुछ नहीं है और टैक्सेस भी कुछ नहीं है तो यार EBIT will itself be what, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो है 10 लाख का, सॉरी 10,000। एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, कंपनी में एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लोन, डेट। कैपिटल मतलब क्या, सिंपली सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल मतलब सिर्फ शेयर कैपिटल नहीं है, कैपिटल एम्प्लॉयड रिफर्स टू सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। उसमें तुम्हारा डेट आ गया, इक्विटी आ गया, प्रेफरेंस आ गया, सब कुछ आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्लूड्स डेट, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, all three things, that is total 1 lakh। एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख का है। मैं बोलता हूं कंपनी के पास अगर स्टार्टिंग में जीरो इंटरेस्ट है, मतलब कंपनी ने कोई लोन नहीं लिया है,
मतलब कंपनी इज ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड, सारा का सारा इक्विटी है कंपनी में। तो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कंपनी के पास है 1000 शेयर्स। एग्जिस्टिंग पैट कितना है 10,000, एग्जिस्टिंग पैट 10,000, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स 1000। कंपनी में प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं है, तो मुझे बता ईपीएस निकालने के लिए क्या करूंगा, ये जो 10,000 है डिवाइड बाय 1000 शेयर्स, माय ईपीएस इज हाउ मच 10 रुपीज। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ईपीएस 10 रुपए का कैसे आया, क्लियर है क्या, बोलो कोई डाउट है इसमें? अब ये रेशियो वैसे तो अपन चैप्टर 5 में पढ़ने वाले हैं, बट यहां पे समझाना जरूरी है। देयर इज अ रेशियो कॉल्ड एज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको अपन आरओसीई बोलते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का सिंपल फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अ वेरी सिंपल फॉर्मूला ऑफ आरओसीई इज ईबीआईटी, ROCE is EBIT upon capital employed into 100। EBIT कितना है 10,000, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 1 लाख, तो 10,000 यहाँ पे लिखा है 10,000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100, योर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज हाउ मच 10%। सो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी को तुम चेक करोगे, दो चीजें इधर से कैरी करना, एक 10 का ईपीएस है और 10% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है एग्जिस्टिंग डेटा में? अब कंपनी वॉन्ट्स टू रेज ₹1 लाख मोर फॉर एक्सपेंशन। कंपनी को 1 लाख रुपए चाहिए, किसके लिए, उसका बिजनेस एक्सपेंड करना है। अब ये 1 लाख रेज करने के दो अल्टरनेटिव्स है, या तो 1 लाख तक का इक्विटी शेयर्स इशू कर, या तो 1 लाख का बोरोइंग कर। देयर आर टू अल्टरनेटिव्स, डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग। अगर 1 लाख का डेट लेते हो तो इंटरेस्ट रेट 10% है, 1 लाख इंटू 10% इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा 10,000 रुपए का। अगर इक्विटी शेयर्स इशू करते हो तो यू हैव टू इशू 1000 मोर शेयर्स। एग्जिस्टिंग शेयर्स 1000 है, उसके बाद में तुमने इक्विटी फाइनेंसिंग लिया तो यू हैव टू इशू 1000 एडिशनल शेयर्स। ये 1000 शेयर्स एडिशनल है, दिस 1000 शेयर्स आर एडिशनल। आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में चेक करना। एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेंशन, ये जो एक्सपेंशन कर रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेंशन द ROCE इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 15%। ROCE का फॉर्मूला क्या है, EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। नया ROCE एक्सपेक्टेड है 15% का। EBIT आई डोंट नो, कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे बता, एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था 1 लाख। अब अगर तू 1 लाख रेस कर रहा है, या तो इक्विटी से कर या तो डेट से कर, कि तेरा कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ेगा। व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग। यू आइदर टेक इक्विटी फाइनेंसिंग और यू टेक डेट फाइनेंसिंग, योर कैपिटल एम्प्लॉयड विल इंक्रीज। कितने से 1 लाख से बढ़ेगा, तो 1 लाख पहले 1 लाख बाद में, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इज 2 लाख। कितने होशियार हो तुम लोग, 2 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड है इंटू 100, तो टेल मी EBIT कितना आता है? EBIT इज 30,000। एक लाइन लिखा के दिया था मैंने, क्या लाइन सर? EBIT इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग। चेक करो, तुम डेट फाइनेंसिंग लो या इक्विटी फाइनेंसिंग लो, कैपिटल एम्प्लॉयड उतना ही रहेगा, ROCE उतना ही रहेगा, EBIT भी उतना ही रहेगा। Just because you have taken a debt does not mean your EBIT will be less or EBIT will be more. EBIT will remain same. तो नया EBIT कितना आया 30,000। अब चेक करना आगे, EBIT कितना है 30,000, इक्विटी में भी 30, डेट में भी 30। डेट में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, you have taken a loan of 1 lakh, so if you take debt financing what will happen, you will have to pay interest of 10,000 rupees। इक्विटी फाइनेंसिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं आता है, यू नेवर पे इंटरेस्ट ऑन इक्विटी शेयर्स, यू पे व्हाट, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। सो अगर तुमने डेट फाइनेंसिंग लिया तो 10,000 का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 30,000 माइनस 10,000, योर पैट डायरेक्टली, बिकॉज टैक्स नहीं है तो पीबीटी बोलो या पैट बोलो, कितना है 20,000। चेक करना, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स 1000 थे, अगर तुमने डेट फाइनेंसिंग लिया तो तुमको नए शेयर्स इशू करने पड़ेंगे क्या? नहीं। नए शेयर्स कब है? व्हेन यू इरेज मनी थ्रू इक्विटी। सो
Existing shares 1000, new shares 0. Total shares in debt financing is how much? 1000. But total shares in equity financing will be 1000 existing plus 1000 new. 1000 plus 1000, इसमें ये existing है, ये क्या है? नए है. What is EPS? This earnings for equity holders divided by number of shares. यहाँ पे कितना आया? 20. एंड यहाँ पे कितना आया? 7 पर शेयर. अब जाके ऊपर पढ़ो. 30,000 divided by 2, 7. ओ ठीक है, 30 डिवाइड टू कितना 6 होता है ना वो? नहीं, 15 होगा. 15 per share. इट इज 15 पर शेयर. ठीक है, इवन इफ इट इज 15 पर शेयर, आवर कंक्लूजन रिमेन्स द सेम. डेट फाइनेंसिंग से 20 है, इक्विटी फाइनेंसिंग से कितना है? 15. अब वो ऊपर जाके लाइन पढ़ना. फाइनेंशियल लेवरेज इज डिफाइंड एज टेकिंग एडवांटेज ऑफ डेट टू इंक्रीज EPS. FL is defined as taking advantage of debt to increase EPS. By taking debt, I have ensured increase in EPS. Debt लिया है बट फिर भी मेरा अर्निंग पर शेयर क्या हुआ है? बढ़ा है. डेट फाइनेंसिंग में EPS is 20, इक्विटी फाइनेंसिंग में EPS is 15. बताना चाहेगा ऐसा क्यों हुआ? नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े. पहले जो प्रॉफिट 1000 शेयर में बट रहा था, अब कितने शेयर में बटेगा? 2000 शेयर्स. इसको टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल. डाइल्यूशन मतलब क्या? कम होना. किसका? कंट्रोल. इक्विटी शेयर्स गिव यू द कंट्रोल ऑफ कंपनी. सो व्हेन यू इश्यू 1000 मोर इक्विटी शेयर्स, यू आर डाइल्यूटिंग द कंट्रोल ऑफ योर कंपनी. सो व्हेन यू डाइल्यूट द कंट्रोल ऑफ द कंपनी, योर EPS फॉल्स. डेट फाइनेंसिंग में देयर इज नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल. व्हाई? यू डोंट गिव ओनरशिप राइट्स टू डिबेंचर होल्डर्स, और जो तुमको लोन देते हैं वो यू गिव राइट्स टू ओनली इक्विटी होल्डर्स. दैट इज रीजन वाई EPS यहाँ पे 20 का है, यहाँ पे कितना है? 15 का है. क्या सर ये हमेशा ऐसा ही होगा? द आंसर इज नो. अगेन, एज ऑपरेटिंग लेवरेज वॉज अ डबल एज स्वॉर्ड, फाइनेंशियल लेवरेज इज ऑल्सो अ डबल एज स्वॉर्ड. कैसे पढ़ेंगे ये क्लियर है क्या? बोलो. हाउ इज EPS इंक्रीज्ड? इज दिस क्लियर टू यू? अब ये जो डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग है, ऐसा सेम क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होके आता है इन द चैप्टर ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. ठीक है, बट मैंने उसको डाला लेवरेज में ही है. ऐसा क्वेश्चन मैंने डाला इसी में. व्हाई? बिकॉज ऑफ अ वेरी सिंपल रीजन. वहां पे अपने को यही सब कुछ ट्रीटमेंट करना है, तो इसलिए सेपरेट लेवरेजेस का दिमाग नहीं लगता है. फाइनेंशियल लेवरेज कब एग्जिस्ट होगा? ओनली इफ द कंपनी हैज टेकन लोन, देयर विल बी फाइनेंशियल लेवरेज. जैसे ऊपर हमने पढ़ा था, अगर कंपनी के पास फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट है तभी OL रहेगा. यहां पे अगर कंपनी के पास फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है तभी क्या रहेगा? FL. सो फाइनेंशियल लेवरेज एग्जिस्ट ओनली व्हेन द कंपनी यूजेस फिक्स्ड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स एज डेट. ठीक है, डेट बोल, बोरोइंग बोल, डिबेंचर, बॉन्ड, जो भी है वो. अब इसमें भी दो आता है फॉर्मूला. 2 लेवल फॉर्मूला ऑफ डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज. सबसे पहले डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज तुमने एक पढ़ा था यहाँ पे, द परसेंटेज चेंज इन EPS अकरिंग ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन EBIT. यही क्या है? यही 2 लेवल फॉर्मूला है. परसेंटेज चेंज इन EPS बिकॉज ऑफ परसेंटेज चेंज इन EBIT. सो योर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का 2 लेवल फॉर्मूला इज परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT. परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT. इसका सिंगल लेवल फॉर्मूला भी है. वो सिंगल लेवल फॉर्मूला थोड़ा वेरी होता है डिपेंडिंग ऑन वेदर द कंपनी हैज टेकन प्रेफरेंस डिविडेंड और नॉट. व्हाई? तब से अपन ये बात कर रहे हैं फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट. फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट आई हैव ओनली टच्ड अपॉन बोरोइंग्स, बट प्रेफरेंस शेयर भी तो फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट आता है. प्रेफरेंस डिविडेंड अगर कंपनी ने रेस किया है 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख, कंपनी हैज टू पे 1 लाख का 15% एज प्रेफरेंस डिविडेंड. प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना ऑप्शनल नहीं होता, कंपलसरी होता है. तो इसीलिए अगर कंपनी ने प्रेफरेंस डिविडेंड लिया है तभी भी फाइनेंशियल लेवरेज एग्जिस्ट करेगा. सो योर फॉर्मूला विल चेंज डिपेंडिंग ऑन वेदर द कंपनी हैज टेकन प्रेफरेंस डिविडेंड और नॉट. फर्स्ट सिंपल, if there is no preference during the company, the formula is EBIT upon EBT. 2 लेवल फॉर्मूला अलग है, सिंगल लेवल फॉर्मूला अलग है, अंदर के कंटेंट भी अलग रहेंगे. FL का 2 लेवल वाज परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स.
सिंगल वॉज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT. इसका 2 लेवल इज परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT, but single level is EBIT upon EBT. One level formula, if there is no preference dividend, it is EBIT upon EBT. But अगर preference dividend लिया है तो चेक करना, EBIT सेम रहेगा, EBT सेम रहेगा, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी. EBIT इसको लिखते कैसे, EBIT डिवाइडेड बाय EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड. अब जो 1 माइनस टी है वो सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए है, दैट इज ओनली फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड 1 माइनस टी. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ degree of financial leverage for a single level if preference dividend exists, if the company has issued preference shares. EBIT upon EBT minus preference dividend divided by 1 minus T. अब for those who have done group 1 तुमको ये समझेगा, for those who have not done सुन के छोड़ देना. जब तुम इंटरेस्ट लेते हो, तुम्हारे प्रॉफिट्स में से इंटरेस्ट माइनस होता है, and then you get profit after tax. Income tax allows you to pay tax after deducting interest. तुम्हारे प्रॉफिट में से इंटरेस्ट माइनस करो, जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसके ऊपर टैक्स पे करना. सो इंटरेस्ट को बोलते हैं डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर. ठीक है, मतलब क्या, इट कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट्स एंड वॉट एवर रिमेन्स यू कैन पे टैक्स ऑन दैट. बट प्रेफरेंस डिविडेंड ऐसा नहीं है. द कंपनी इवन इफ इट इज पेइंग प्रेफरेंस डिविडेंड, उसको उसका बेनिफिट नहीं मिलता है. मतलब क्या, देख देयर आर 2 टाइप्स, यहां पे इंटरेस्ट, यहां पे प्रेफरेंस डिविडेंड. सब ये काटने से पहले का प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड. यहां पे प्रॉफिट तुम्हारा है 10,000, यहां पे भी प्रॉफिट कितना है 10,000. अब इसमें से इंटरेस्ट या प्रेफरेंस डिविडेंड, केस 1 में दोनों ही केसेस में 1,000 का इंटरेस्ट है यहां पे और यहां पे 1,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड है. नेट प्रॉफिट जो बचता है वो यहां पे भी 9,000 बचता है, यहां पे भी 9,000 बचता है. अब इनकम टैक्स का रेट अगर 30% है, इफ द टैक्स पेमेंट रेट इज 30%, इनकम टैक्स अलाउज यू टू पे टैक्स ऑन 9,000. सो यहां पे यू आर पेइंग ओनली टैक्स ऑफ हाउ मच, 2,700. बट जब बारी आती है प्रेफरेंस डिविडेंड की, इनकम टैक्स बोलता है कि हम लोग ये प्रेफरेंस डिविडेंड को मानते ही नहीं है, ये है ही नहीं कुछ भी, दिस इज नथिंग. सो इनकम टैक्स बोलता है कि यू हैव टू पे टैक्स ऑन दिस 10,000 ओनली. 10,000 इंटू 30%, यहां पे टैक्स होता है 3,000. तो प्रेफरेंस डिविडेंड का एडवांटेज कंपनी को मिलता नहीं है. दैट इज द रीजन वाई ये 1 माइनस टी यहां पे नीचे गया है. अब फॉर्मूला के डेरिवेशन में मत जाओ, यू हैव टू जस्ट सिंपली रिमेंबर द फॉर्मूला. डेरिवेशन पूछते भी नहीं है एंड जरूरी भी नहीं है. बट हाँ, ये टी मतलब टैक्स रेट. टी इज इक्वल्स टू टैक्स रेट, बट वेरी इंपॉर्टेंट इन डेसिमल. तुमको क्वेश्चन में टैक्स रेट अगर परसेंटेज में दिया है तो कृपया करके उसको डेसिमल में कन्वर्ट करे. 1 माइनस टैक्स रेट इन डेसिमल फॉर्म. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इफ preference exists. If preference does not exist, it is very simple, EBIT upon EBT. 90% of the times यही आता है, 10% चांस है कि ये पूछा जा सकता है, बट मेजर तुम्हारे लिए यही रहेगा. इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना. अगर प्रेफरेंस डिविडेंड लिया है तो फर्स्ट यूज करना, अगर नहीं लिया है तो सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करना. एग्जाम में ज्यादातर वो इसी के बारे में पूछते हैं. अब ये बताने की जरूरत नहीं है, बट जानबूझ के मैं लिखना चाहता हूं, ये जो EBIT अपॉन EBT है, इसको लिखने का एक और तरीका है. फॉर्मूला सेम है, देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग दिस. EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट, गया कि चेक करो दिमाग में. EBIT अपॉन EBT कैन बी रिटन एज EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट. सर क्यों लिखा है आपने? क्वेश्चन गिव्स यू फाइनेंशियल लेवरेज 2 times. Question gives you interest 10,000. Question asks you to calculate EBIT. Question asks you to calculate EBT. अब तुमको FL दिखा तो तुम क्या करते हैं, FL का फॉर्मूला लगाते हैं. FL का फॉर्मूला लगाने जाओगे EBIT अपॉन
EBT, बट तुमको सिर्फ इंटरेस्ट दिया है, या स्टक सर EBIT अपॉन EBT इक्वल टू 2 ऐसा है, बट अभी इसमें इंटरेस्ट नहीं है, फॉर्मूला में इंटरेस्ट आता ही नहीं है, तो क्या करेंगे? तो इसलिए मैंने लिखा है कि EBT को तुम लिख सकते हो EBIT माइनस इंटरेस्ट. व्हाट हैपेंस? EBIT माइनस अगर इंटरेस्ट 10,000 लिखोगे तो ये और ये कॉमन हो जाएगा, एंड देन यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन एंड गेट द आंसर ऑफ EBIT. ठीक है, इसीलिए एग्जाम में अगर क्लिक होना चाहिए तो EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट भी फाइनेंशियल लेवरेज होता है. फॉर्मूला वही है, लिखने का तरीका बस क्या है, अलग है. द वे ऑफ राइटिंग इज डिफरेंट, दैट्स इट. Last point on financial leverage. Financial leverage is also a double-edged sword. Why is it a double-edged sword? Check करो. Financial leverage will benefit the entity as long as interest on debt is less than ROCE. FL तभी benefit करेगा अगर interest on debt is less than ROCE. मतलब क्या? The company is earning more return on capital employed and paying less interest. Only in that case, financial leverage will benefit a entity. कैसे? चेक करना. No need to write this. लिखो मत, कचरा कचरा बहुत हो जाएगा. ये सेम है, हो चुका है, वेरी गुड. ये सेम रहेगा, ये कुछ नहीं चेंज कर रहा हूं, ये भी कुछ नहीं चेंज कर रहा हूं. एग्जिस्टिंग ROCE कितना है, सॉरी एक्सपेक्टेड कितना है ROCE? 15 है का. डेट रेट कितना है? मतलब इंटरेस्ट ऑन डेट इज लेस देन ROCE. इसलिए अपन ने चेक किया FL काम कर रहा है और EPS अपना क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. बट व्हाट इफ आई मेक दिस इंटरेस्ट 20%? इफ आई मेक दिस इंटरेस्ट 20%, व्हाट विल हैपन? इंटरेस्ट विल बी 20,000 रुपीज. तो इंस्टेड ऑफ डिडक्टिंग 10,000 विल डिडक्ट हाउ मच? तो योर PAT विल बी 10,000. EPS विल फॉल टू 10. मतलब इक्विटी फाइनेंसिंग का EPS ज्यादा रहेगा, डेट फाइनेंसिंग का कम रहेगा, अगर ये इंटरेस्ट ऑन लोन ज्यादा है देन व्हाट? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. तो वहां पे वही लिखा है, EPS विल इंक्रीज एज लॉन्ग एज इंटरेस्ट इज लेस, ROCE इज मोर. EPS विल फॉल इफ उल्टा हैपेंस, दैट इज इंटरेस्ट ऑन डेट इज मोर, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज लेस. अगेन दिस कैन बी आस्क्ड फॉर कमेंटिंग. कमेंट करना ऐसा क्यों हुआ है, तो इसलिए ये MCQ के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, प्लस ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है. Then there is a third class concept called as combined leverage. Combined leverage, ओ रुको, combined leverage मतलब दोनों का ऐड मत करना. combined मतलब कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब OL और FL का कॉम्बिनेशन, बट डू नॉट ऐड OL एंड FL, मल्टीप्लाई. combined leverage is operating leverage into financial leverage. Combined leverage is operating leverage into financial leverage. That's it, simple formula, story over, not over. Why? Operating leverage can be a single level formula of OL. अरे बोलो ना, contribution upon EBIT. सिंगल लेवल ऑफ FL अज्यूम करो वो ये नहीं है, क्या प्रेफरेंस नहीं है, EBIT अपॉन EBT. एकट बचा क्या, लिखना है वो, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT. ये एक और फॉर्मूला हो सकता है. ये कब यूज करो मालूम है क्या? अगर क्वेश्चन में सिर्फ CL निकालने के लिए बोला है या MCQ में सिर्फ CL निकालने के लिए बोला है तो ये यूज करो. पहले OL फिर FL फिर CL मत करना. अगर फॉर्मूला नहीं आ जाए तो करो. हाँ, 1 लेवल बोलो. 2 लेवल फॉर्मूला क्या है OL का? परसेंटेज चेंज इन सेल अपॉन परसेंटेज चेंज. तू बार बार माती खा रहा है. परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन, तू ही बोल रहा है, तेरे को ही बोल रहा हूँ. परसेंटेज चेंज इन सेल्स. FL परसेंटेज चेंज इन EPS था, EBIT नहीं था. परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन, ये कैंसल, बचा क्या? परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन
sales. This is the formula of combined leverage for 2 level. झालं? Done? OL is operating risk, FL is financial risk. What is combined leverage? Total risk. Combined leverage is a measure of total risk. It is percentage change in EPS upon percentage change in sales. यही percentage change in EPS upon percentage change in sales. That is combined leverage. एक और थर्ड क्लास क्वेश्चन है थ्योरी के लिए आता है ये वाला. क्या होता है आइडल सिचुएशन? एफएल और ओएल अगर दोनों ही हाई है तो यार कंपनी इज वेरी रिस्की. अगर एक हाई एक लो एक लो एक हाई नॉर्मल, लो लो आइडियल सिचुएशन. इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, इसमें रिस्क नॉर्मल है, इसमें रिस्क सबसे कम है, तो जैसे सिचुएशन आइडियल. अब मेरे हिसाब से अगर रिस्क कम ले रहे हो तो रिटर्न भी कम मिलेगा. बट दिस चैप्टर इज एंटायरली ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क ओनली. रिटर्न के लिए जो चैप्टर है वो अभी नहीं है, बाद में. तो दिस चैप्टर इज ओनली कंपेयर्ड और ओनली रिलेटेड टू व्हाट? रिस्क. तो इसलिए इसको आइडियल बोला गया है बिकॉज इसमें रिस्क सबसे कम है. यहां पे मोस्ट रिस्की या मोस्ट रिस्क, यहां पे ओके ओके, यहां पे लोएस्ट रिस्क. ये टेबल याद में क्या रखो, दोनों हाई रिस्की, एक हाई एक लो नॉर्मल, दोनों लो सबसे कम आइडियल. एक क्वेश्चन घटिया पूछा गया था थ्योरी का, बट कुछ घटिया था, बट इसमें मार्क्स लूज नहीं कर सकते तुम लोग. अच्छा क्वेश्चन, अच्छा नहीं घटिया ही था. इतने सारे क्वेश्चंस करने. देखो द टोटल रिस्क, ये कंबाइंड लेवरेज का ही दिया है. द टोटल रिस्क ऑफ एनी बिजनेस इज कॉम्बिनेशन ऑफ ओएल एंड एफएल. यू आर रिक्वायर्ड टू कंसिडर द फर्स्ट टू कॉलम्स ऑफ द गिवन टेबल एंड गिव योर कमेंट्स ऑन द थर्ड कॉलम. क्वेश्चन वाला दिख रहा है, करना क्या है? लो हाई नॉर्मल नॉर्मल. ऑल्सो सिलेक्ट द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ DOL एंड DFL. या तो ये कर या तो ये कर. क्वेश्चन ओवर. 2 मार्क्स का था इन May 25. इट वाज अ थ्योरी क्वेश्चन बेसिकली. इसको अपन प्रॉपर लिखेंगे, डोंट वरी. ठीक है. सो दिस इज एज फार एज योर theory discussion on leverage is concerned. There are 2 concepts pending: trading on equity and indifference point. This is pure theory. Indifference point जब आएगा तब मैं सिखाऊंगा with the help of a question itself. ठीक है. Your job is very simple. Go home. I'll send the PDF of this for those who don't have. For those who have, कृपया करके तीनों formulas रिवाइज करके आना, जो पढ़ाया है रिवाइज करके आना. Monday will solve questions. ठीक है. मंडे से तुमको होमवर्क आना चालू होंगे कि बहुत क्वेश्चन है. पागल है क्या? मैं थोड़ी करेगा 60 क्वेश्चन. कल नहीं है, संडे को छुट्टी रहता है. बट दिस संडे छुट्टी है. नेक्स्ट संडे ऑनवर्ड्स विल हैव टेस्ट. चलो बाय बाय. ऑनलाइन स्टूडेंट्स स्टे पुट.